आप देख रहे हैं ARTV चैनल। NSUI के अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को कैंपस का दौरा करने और तलबा से बातचीत करने की इजाज़त न देने के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया था। जेल के महकमा ने राहुल गांधी और TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी को उनके कारकुनान से मिलने की इजाज़त दी, जिन्हें मुकामी अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। सैकड़ों NSUI और यूथ कांग्रेस अरकान के साथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनान भारी हिफाजती हिसार में हिम्मत जाहिर करने के लिए छंछलगुड़ा जेल के बाहर जमा हुए। गांधी ने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जेल में बंद कारकुनान से बातचीत की। వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి, ఏమైంది, ఏం జరిగింది, ఎందుకు వాళ్ళని అంత నాన్ అవైలబుల్ మీద వచ్చి చేయడం జరిగిందని కనుక్కుంటారు. కనుక ఇంకా వాళ్ళు ఎలా మద్దతు చేయాలి, లీగల్గా చేయాలి, మాట్లాడి చేయాలి. దట్ హీ విల్ టేక్ ఎ కాల్ ఆన్ లోపల అయినా బట్టి విక్రమార్క ఇద్దరే వెళ్ళారు. సో లోపల మాట్లాడడం సంగతి మాకేం లేదు, ఆయన వచ్చి బయటకు చెప్పారు. मैडम किस तरह से अंदर देखा जा रहा है मैडम? लास्ट मोमेंट లో ఇచ్చారు 1+1. So that's how we can get it. मैडम अंदर स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से देखेगा मैडम? What happened inside and what was the visit about? See, there is nothing that we can talk about what happened inside. Because we have been trying for this. मैडम अंदर किस तरह से देखा जा रहा है मैडम स्टूडेंट्स के साथ? मैडम ये बोल रहा सर। ओके See, we don't really know what happened, but it's understood that he must have gone. Sympathize with what is saying there, because they will definitely. And it's a non-bailable warrant. What did they do? Just because Rahul Gandhi ji was not being allowed into the principal university to interact with the students and the observers, he was not. अरे ना ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। अरे मधु देम रहा बाबू రాహుల్ గాంధీ గారు అక్కడి విద్యార్థులు, ముఖ్యంగా దళిత గిరిజన సంఘాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. అక్కడ విద్యార్థులకు చర్చించి యూనివర్సిటీలో ఉన్న సమస్యలే కాకుండా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఉన్న 100 సంవత్సరాల చరిత్రను, అక్కడ చదువుకున్న మహామహులు చదువుకున్న యూనివర్సిటీని పరిశీలించాలని రాహుల్ గాంధీ గారు అనుకున్నారు. యూనివర్సిటీ అధికారులు అనుమతి నిరాకరించిన నేపథ్యంలో మళ్ళొక్కసారి అనుమతి అడగడానికి విద్యార్థి విభాగానికి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు విద్యార్థులు అక్కడికి వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన విద్యార్థుల మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి, నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టి ఈ రోజు చెంచల్గూడ జైల్లో నిర్బంధించారు. గత 5 రోజులుగా పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, నేను, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, మిగతా మా శాసనసభ్యులు, మా మాజీ మంత్రివర్యులు గారు, అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి 18 మంది ముద్దాయిలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు 3 కలవచ్చు. అంటే 60 మందిని మేము బయట నుంచి, కానీ కేసీఆర్ ఒత్తిడితోటి ఈ రోజు కేవలం 2కే అనుమతి ఇచ్చారు. అందులో మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు, మా CLP నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు లోపలికి మా విద్యార్థులను పరామర్శించడానికి వెళ్ళిండ్రు. ఇది దుర్మార్గమైన చర్య, అనాగరికమైన చర్య, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకమైన చర్య. ప్రజాస్వామ్యంలో యూనివర్సిటీలు అంతర్భాగం. యూనివర్సిటీలలో ఎప్పుడైనా విద్యార్థులతో ముఖాముఖి ప్రజాప్రతినిధులకు ఏర్పాటు చేయాలి. దాన్ని తిరస్కరించడమే కాకుండా అనుమతి ఇవ్వమని అడిగిన మా విద్యార్థులను జైల్లో పెట్టడం కేసీఆర్ కుట్రలకు ఇదొక మా విద్యార్థులు బలైనరు. అందుకే ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కానీ విద్యార్థి విభాగం కార్యకర్తలకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా వాళ్ళకు అండగా ఉంటామని, వాళ్ళకు అండగా ఉండడానికి ఈరోజు పల్మూరు వెంకట్తో సహా 18 మంది విద్యార్థులను పలకరించడానికి, పరామర్శించడానికి, వాళ్ళకు అండగా నిలబడడానికి, భవిష్యత్తులో తెలంగాణలో
కేసీఆర్ నిరంకుశత్వం మీద పోరాటం చేయడానికి స్ఫూర్తి నింపడానికి ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు చెంచల్గూడ జైల్లో మా ఎన్ఎస్వై నాయకులను కలుసుకోవడం జరిగింది. ఇది నైతికంగా కేసీఆర్ పతనానికి దారితీస్తుంది. ఈ రోజు అధికారం ఉంది కానీ పోలీసులతో నడపాలనుకుంటే కుదరదు. భవిష్యత్తులో ఇంకా పోరాట కార్యాచరణ ఉధృతం చేస్తాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతాం. కేసీఆర్ మెడలు వంచుతాం. ఇట్లాంటి అనాగరికమైన చర్యలకు పాల్పడితే మంచిది కాదు అని చెప్పి కేసీఆర్ ను హెచ్చరిస్తున్నాం. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सरूनगर में पेश आए कत्ल के वाक़े की मजम्मत की और उसे आइन और इस्लाम के मुताबिक एक मुजरिमाना फेल करार दिया। हैदराबाद में आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हम सरूनगर में पेश आने वाले गैरत के नाम पर कत्ल वाक़े की मजम्मत करते हैं। औरत ने अपनी मर्जी से शादी का फैसला किया, इसके भाई को शौहर का कत्ल करने का कोई हक नहीं है। ये आइन के मुताबिक मुजरिमाना फेल है और इस्लाम के मुताबिक बदतरीन जुर्म है। इस वाक़े को कल से एक और रंग दिया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। हम कातिलों के साथ खड़े नहीं है, ये बात ओवैसी ने अपने खिताब में कहा। बोल रहा बंद करो शराब, कुत्ते का पेशाब बंद करो। नहीं बंद करेंगे आप, क्योंकि शाम में 6 बजे की आपको टून होना है। उसके बाद टून हो के आप औरतों को मारेंगे, पी के टक्कर मार के लोगों को जख्मी करेंगे, मार देंगे। लगाओ शराब पे पाबंदी। तो बोलेंगे हाँ शराब पे पाबंदी बनाए तो फिर पैसे कहां से आएंगे? यानी पैसों की फिक्र है, मेरी तहजीब की फिक्र नहीं है। जो पैसा आपको मिल रहा है शराब से, वो तो माशरे की बुराइयां हैं, जड़ है। लोग पी के कत्ल करते, लोग पी के मारते खवातीन को, महिलाओं को, उस पे नहीं करते आप। बल्कि जहां तक मेरी आवाज अल्लाह के फजलो करम से पहुंचेगी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट CCTV कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन ओवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तायीद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ, ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा। और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं
اور ان میں سوچنے سمجھنے کا سلیقہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس کا خیال رکھیے. اور پھر اس کے بعد آپ, بلکہ ہم شہر سے آگے سرو نگر میں, میرے خیال سے ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں بھی نہیں آتا وہ, ایل بی نگر میں, ایل بی نگر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آتا کوئی بول. مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو ایسی, ہر آدمی شروع ہو گیا. ہم کیا تمہارے بھائی جان دولے بھائی ہیں کیا؟ اویسی کیا کر رہے, کیوں نہیں بولے اویسی اب تک؟ پوچھو ان کو کیا ہو رہا ہے. یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں, مودی نہیں بولیں گے, آپ کے ڈیڈی ابا نہیں بولیں گے کچھ بھی. جہانگیر پوری کے بارے میں مودی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر. سیندھوا میں 13 مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا, دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے. کھرگون میں 22 مسلمان گھروں کو اور جھوپڑیوں کو ڈیمالش کر دیا گیا, دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے. گجرات کھمباٹ میں گوداموں کو توڑ دیا گیا, دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. مگر اویسی بولنا میں وزیر اعظم ہوں, مگر نہیں, وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے. ہر چیز ہمارے پاس, انہوں کیا بولے, انہوں کیوں نہیں بولے, انہوں کیوں نہیں اٹھے, انہوں کیوں نہیں بیٹھے. مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں وہ بولتے نہیں اویسی کو ووٹ مت دو, گورنمنٹ کو بدلنا ہے. بولو نا, آپ بھی بولو نا. نہیں بولیں گے. حد تو یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں اپاہج ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے, اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا پتھر پھینکا؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا آدمی پتھر پھینک سکتا؟ ماشاءاللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا. کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پوچھیں گا نہیں, ارے یہ کیسے کر سکتا ہے بھائی نے, نہیں پوچھیں گے, نہیں پوچھیں گے, بالکل نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں کھل کر کہہ رہا ہوں, وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا, مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے, کنڈیم کرتی ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں, اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے 2 مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے, تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. سمجھے نا بات کو, آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو, نہیں تو یہاں پر بھی چرپور بہت شروع ہو جائیں گے. انہیں شروع کر دیے, دیکھو یہ لوگ, یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں حال ہو گیا میرا. تو مسلمانوں میں نکاح 2 مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ ایکٹ ہے, شریعت اپلیکیشن ایکٹ. ہندو میرج ایکٹ میں 2 ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی, چاہے اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی, قانوناً اس کو اجازت ہے, قانوناً اس کو اجازت ہے, اس نے شادی کر لی. تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے. اسلام میں بدترین جرم قتل ہے, بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو آپ, جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا, اب تو میرا حساب کر. آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں, کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ منہ پھیر لینا تھا, میں پسند نہیں, ٹھیک ہے جاؤ تم. مگر آپ نے ظلم کیا, غلط حرکت کی, اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے. شادی نکاح 2 مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے,
उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरह अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप, हदीस शरीफ पढ़ो आप। बल्कि मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि आलिम दीन ने मुझे बताया था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अली शेर खुदा यमन के गवर्नर थे, और यमन में यह हुआ था कि एक शख्स एक खातून की महिला के शौहर का इंतकाल हो गया, उसको एक बच्चा था। उसने दूसरे शौहर से शादी की, दूसरे आदमी से शादी की, और उसने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में हायल होगा, इसको खत्म कर देते। वो औरत राजी हो गई और सबने मिलकर उसको बच्चे को कत्ल कर दिया। ये खबर आम हो गई। शेर खुदा हजरत अली को मालूम हुआ, उन्होंने पूरा माजरा लिखकर पूरा तफसील खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम के पास भिजा दिया। तो फारूक आजम ने क्या फैसला दिया? फारूक आजम ने कहा कि जितने लोग उस बच्चे के कत्ल में मुलविस है उनसे कसास लिया जाएगा, उनको सजाए मौत दी जाएगी। और फारूक आजम ने कहा कि अगर सना में अगर पूरा सना मुलविस होता तो मैं सब पे सजा नाफिज कर देता। ये कत्ल का मामला है, ये जान की अहमियत है इस्लाम में। तुमको कोई अख्तियार नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो। अगर तुम अपने घर में माशरे को अच्छा रखते, तुम्हारे घर जन्नत का एक हिस्सा बन जाता तो ये तमाम चीजें होती नहीं ना। मगर आप नहीं, आपको दिखाना है अपना गुरूर, अपना तकब्बुर। इसको ऑनर किलिंग बोलते। अब इसका और एक रुख है, ये मीडिया वाले कल से चला रहे, कल से एक नया रंग बना के पेश कर रहे। एक बात सुनो मीडिया वालों जो मोदी को अपना पप्पा मानते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने फौरन गिरफ्तार नहीं किया? उसको गिरफ्तार कर लिया, और अब जो ओवैसी पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं कंडेम किया। क्या मैंने कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा उस कातिल के लिए? क्या मैंने कहा उसके लिए वकील खड़ा करूंगा? क्या मैंने कहा उसको गुलपोशी की जाएगी? नहीं ना। और फिर मध्य प्रदेश में आसिफ का किस्सा है। आसिफ का किस्सा है, वो गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डिंडोरी। उस गांव का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिए, उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से बोले कि उसका घर तोड़ दो, आप उस बच्चे का उसने शादी की, उसका घर तोड़ दो? अरे हम तो मजलूम के साथ हमेशा खड़े, और आज भी खड़े मजलूम के साथ। क्योंकि कत्ल करना किसी का काम नहीं है। आपने किया ना, अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। हम कातिलों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मेरे भाई, मेरे रुकने असेंबली के ऊपर 3-3, 4-4 गोलियां चलाई गई, 28-30 चाकू के वार किए गए। अल्लाह ने अपने फजल और करम से बहुत ताकत दी, आज भी दी। मैं उस पर गुरूर नहीं करता हूं कि अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत से आप में से लोग मुझसे आकर मिले थे, क्या कर रहे साहब आप, क्या कर रहे साहब आप, खामोश बैठेंगे, क्या कर रहे आप? अरे
एमएलए नहीं तो आपका भाई है, आपका खून है। मैंने कहा नहीं, वो रास्ता मेरा नहीं है, मेरा रास्ता वो नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला पर हमने भरोसा किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी मिली। आप बताओ, अगर हर कोई कत्ल करेगा तो फिर अनारकी पैदा हो जाएंगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके जरिए उन टीवी के एंकरों को ही बोलना चाह रहा हूं, मेरे मुंह को मत लगो। आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, और मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, किस वक्त बोलूंगा, वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय कर सकते, याद रखो। वो अरे शीर खुरमा और हलीम असर कर रही है। लगता है बलाला साहब प्योर घी इस्तेमाल किए हैं। माशाअल्लाह, ईशा की नमाज भी पढ़ो जाके यहां से इंशाअल्लाह। तो हम इनको बताना। मलकपेट सलीमनगर में वाक़ फरत नर्सिंग होम में आज सुबह अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। देखते ही देखते आग शोलों में तब्दील हो गई। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इत्तला मिलने के बाद मुकामी पुलिस और फायर अमले ने मौका हादसा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एक तरफ अवाम बढ़ती महंगाई से परेशान है तो दूसरी जानिब जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके शाहीन नगर और उस्मान नगर में अवाम आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा देखकर बेहाल है। कुछ आवारा कुत्तों ने भोली भाली 13 बकरियों को हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिनमें 6 बकरियों की मौत हो गई। मुकामी अवाम का कहना है कि कई मरतबा महकमे के अहदेदारों से शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवाम ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन और कमिश्नर से अपील की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं शाहीन नगर उस्मान नगर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सो जंगली कुत्ते बहुत फिर रहे हैं। यहाँ पे 13 बकरियों को जख्मी कर दिए। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जिसमें से 6 बकरियां मर चुके हैं। अभी आपके सामने तो यहाँ एक बकरी मरी पड़ी है, आप लोग जरा देखो। और यहाँ पे अंदर भी 3 बकरियां मर के पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है। हम एम से बस गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जरा आप जरा तवज्जो देके जो से जंगली कुत्तों को जरा पकड़ लिया तो मेहरबानी होती बहुत बहुत। और बच्चों को भी पकड़ ले रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी घर के बाहर निकल के खेलना भी मुश्किल होगा बच्चों को। बकरियां तो बकरियां भाई, हमारे जो छोटे बच्चे जो गली में खेल रहे हैं वो बच्चों को भी जो सो कुत्ते पकड़ ले रहे हैं साहब। 6-7 बच्चों को जो है सो कुत्ते पकड़ के जख्मी कर दिए। दवाखाना उस्मानिया में भी लेके जाके बताए। जरा हमारे चेयरमैन अहमद सादी साहब से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप जो सो कुत्तों को गाड़ी को भेज के जरा के कुत्तों को जरा पकड़ाइए। बहुत बहुत आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है मेरे भाई, आप जरा तवज्जो फरमा दीजिए। यहाँ पर शाहीन नगर जो उस्मान नगर जो पहाड़ है, बकरियां कुत्ते वहाँ से जंगली कुत्ते आ रही, हमारे बकरियों को और हमारे जो सो मासूम बच्चे खेल रहे वो लोग को भी काट दे रहे हैं, बच्चों को भी काट रहे हैं। यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। अब क्या बच्चों को पकड़ पकड़ के घर में रखेंगे, छोटे बच्चों को? आप जरा कोशिश करिए, जरा कुत्तों की गाड़ी भेजिए मेरे भाई। नाजरीन, आपने अभी तक देखा या सुना होगा, अगर कोई इंसान आलिल हो जाता है तो डॉक्टर से सवाल करते हैं कि इनको शराब पीने की आदत है क्या,
اگر ہے تو وہ اسے چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کل رات ٹریفک پولیس کی جانب سے چمپا پیٹ میں ڈنکن ڈرائیو کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ تلاشی کے دوران ان ٹریفک عہدیداروں کو ایک شخص ہاتھ لگا جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح ایک پولیس عہدیدار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ فون اٹھاتا ان چلا جاتا، کوئی بھی مارتا نہیں، فون ریکارڈ کرو، اوپن کرو، کچھ بھی نہیں مارتا۔ Public was paying your tax. డాక్టర్ అయినా కావాలి, మీరైనా పోలీసు కావాలి, మీరైనా సర్పంచ్ కావాలి, నేనైనా సర్పంచ్ కావాలి. కపిల్పురం పిఎస్ అయితే ఆడికే ఉండాలి. ఈ సైదాబాద్ పిఎస్ యూ షుడ్ నాట్ కమ్ టు హియర్. యూ షుడ్ కమ్ టు కంచన్బాగ్ పిఎస్. నీరా కాదు 11 o'clock వరకే టైం. 11 o'clock వరకే టైం. مسیح اللہ خان نے ہفتے کو تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین کے طور پر 5 سال کی مدت کے لیے چارج سنبھال لیا۔ چیئرمین کے طور پر خان کی تقرری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وقف بورڈ کے سی ای او شاہنواز قاسم نے کہا بورڈ کے 10 ممبران میں سے 8 الیکشن میں موجود تھے۔ یہ انتخاب نامپلی کے حج ہاؤس میں منعقد ہوا۔ حکومت نے ضلع مجسٹریٹ ایل شرمن کو انتخابی افسر کے طور پر مقرر کیا تھا تاکہ بورڈ کے انتخابی عمل کو انجام دیا جا سکے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ کہ وقف بورڈ کی جانب سے تمام ممبران کی جانب سے صدر کا منتخب کیا گیا ہے، مسیح اللہ خان صاحب کو صدر منتخب کیا گیا، اس کے لیے میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور سے اس کمیٹی کے اندر ایم پی اسد الدین صاحب بھی موجود ہے، ہمارے کوثر محی الدین صاحب ایم ایل اے صاحب موجود ہے، ہمارے فاروق بھائی صاحب ایم ایل سی موجود ہے، تمام ممبران ہیں، ہمارے سینئر بار کونسل کے ممبر ہمارے مجیب جاوید صاحب موجود ہے جو بہت سینئر ہے، ملک محتسین صاحب ہے، ہمارے آغا صاحب ہے، ہمارے بغدادی بندگی صاحب ہے، تو ایک سے ایک تعلیم یافتہ لوگ ہیں بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کلکٹر صاحبہ تو بہت پنپرتی کلکٹر ہے، تو اس میں بہت اچھا گروپ، بہت اچھا ہے، بہت اچھی طریقے سے کام ہوگا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مسیح اللہ صاحب پابندی سے جس طرح وعدہ کیے ہیں ان کے ساتھ وقف بورڈ کے جو ہمارے سی او وقف بورڈ ہے اور ان کا پورا اسٹاف ہمیشہ صبح موجود رہے گا، اور لوگ جو میں کافی دن سے چونکہ انتخاب ہونے سے کافی ٹائم لگا ہے اس کے لیے کافی پینڈنگ ایشوز ہیں، انشاءاللہ تمام ممبران سے میری گزارش ہے چیئرمین صاحب سے کہ آپ سب مل کر اور متفقہ طریقے سے فیصلے لیتے ہوئے وقف بورڈ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیے۔ اور وقف بورڈ ڈپارٹمنٹ ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے، سارے مسلمانوں کی نظر ہوتی ہے تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ وقف بورڈ ڈپارٹمنٹ پہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس مرتبہ مجھے امید ہے بہت اچھی طریقے سے وقف جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے گا، جو جائیدادوں کو ڈیولپ کرنا ہے اسے بھی ضرور ڈیولپ کیا جائے گا، وقف کے کرایوں میں اضافہ کیا جائے گا، وقف کی اگر جتنی زیادہ آمدنی ہوگی وہ آمدنی ان مستحق لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو وقف ایکٹ کے اندر آتے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے 5 سال بہت اچھے رہیں گے، اور تمام ممبران اللہ کے فضل سے بہت اچھے ممبران ہیں، اور سب مل جل کر، اور جب بھی کوئی میٹنگ ہو
आपस में प्यार से मोहब्बत से बैठकर, जैसा साबिक़ा की में कभी थोड़ा बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ राय होती थी, इख्तिलाफ़ राय तो ज़रूर रहती है, मगर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव काम हुआ तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तमाम मेंबरों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक मसीह साहब हमारे TRS पार्टी के लीडर है, पहले इन्होंने हज कमेटी में भी ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं। आप सभी जानते हैं हज कमेटी बहुत अच्छी तरीके से उस वक्त इंडिया में नंबर 1 अगर हज कमेटी थी तो ये हमारे तेलंगाना की हज कमेटी थी। लोग मुझे बहुत से ऑफिसर्स मिलते थे दिल्ली से आए हुए, देख के कहते थे कि साहब आपके पास जितना नज़्म ज़ब्त है, जितने अच्छी तरीके से लोगों को फ़्लाइट तक पहुंचाया जाता है, उनको रिसीव किया जाता है, हर तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, लोग खिदमत के लिए आगे आते हैं, इतना अच्छा कहीं भी हम नहीं देखे जितना तेलंगाना में। तो मुझे उम्मीद है इंडिया में नंबर 1 भी वक्फ बोर्ड हमारा तेलंगाना का होना चाहिए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की संभालना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।